Come on. Make your hands at your face, in front of your face, and start shaking. Yeah. Come on. Yeah. And yeah, go. Now the next round. Second. Second, Bobby. Second, 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 second. Hold your body. Yeah, yeah. One more time. Second, second, second. Come on. And go. Now, how are you feeling now? Sir, we are feeling great. That's nice. It should be like that. Okay, so today our class is going to be superb. So first of all, can you tell me one thing? I think very less people are with us. One by one, everyone will tell me what they want to be in her or his life. Who will start? Apeksha, then Adya, then Rudransi. Apeksha, what do you want to be in your life? What is your goal? Sir, I guess. Okay, great. And Adya, Sir, doctor. okay, good, good. And Rudransi, what do you want to be? IAS officer. Okay, great. That's fine. Listen, अगर आपको कुछ भी बनना है ना तो उसको बनने की शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी और कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है वो गोल आप एक पेपर पे लिखो और उसको अपने सामने चिपका के रखो, हमेशा दीवार पे, कहीं भी जहां पे आपकी नजर बार बार पड़ती हो वहां पे एक चिपका के रखो और उस गोल को देखते रहो, उस गोल के बारे में पढ़ो, उस गोल के बारे में सोचते रहो कि व्हाट इज आईएएस, व्हाट इज डॉक्टर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। और सबसे बड़ी पिक्चर ये, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, so that's fine. um so today's topic is I think, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, nice, Yes. nice. So can you see on the screen what are the topics of today's class? It's a Labor Day, what and why, solar family introduction, eclipse basic intro, and a superb story. Okay, so there's a lot of topic and I think we have a limited time. So let's start. Don't waste our time. Okay. And the first topic, it's a Labor Day. Do you know what is the Labor Day and when it is? Anyone? No, sir. Anyone? No. No, sir. Okay. It means no one has knowledge about the Labor Day. Sir. Yeah, tell me. Sir, Labor Day is made because there were drivers, cooking chef. When they were be not, then our life be hard. This is partially true, but everyone will clap for Adya because she has a dare to tell about this thing from. Okay, Okay. now Now, anyone else? If you want to tell me about the Labor Day,
Okay, no problem. Mute yourself. Let me tell you. Labor Day is a day that we celebrate to give the honor to the labor. Basically, everyone in the society is basically doing some kind of labor. Okay, it may be guard, it may be driver, as Adya said, it may be milkman, it may be factory worker, it may be a doctor, it may be engineer, anyone. Okay, so earlier days, what happens? The owner, the person who hired the laborers, there is no rules, there is no guidance, no government rules. So तो पीपल क्या करते थे ना, वो बंधुआ मजदूर बना के रख लेते थे। पूरा जीवन एक ही जगह काम करते करते बीत जाता था। सैलरी टाइम से नहीं देते थे, वर्किंग आवर्स नहीं होते थे कि भाई 8 घंटे काम करना है बस या 10 घंटे काम करना है बस। तो इससे क्या होता था, लेबरर्स जो होते थे उनका जो है डिमोरलाइजेशन होता था, उनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका नाम सुना होगा आपने, अमेरिका में क्या हुआ कि एक भाई साहब थे, उनका नाम था, कोई जानता है नाम? नो सर। हाँ, तो एक भाई साहब थे वहां पे। तो उनका वो एक्टिविस्ट थे, बेसिकली जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो नई नई चीजें लेकर के इन्वेंट करके आते हैं कि समाज में कोई परेशानी हो रही है, सोशल वर्कर कह सकते हो उनको। उनका नाम था मिस्टर बेगन। तो मिस्टर बेगन इज 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 1801 ईयर से लेकर के 1900 ईयर तक के बीच में सम टाइम वो आए, और उन्होंने इस तरफ से काम करना शुरू किया और लेबरर्स के बारे में काफी ज्यादा जो है जागरूकता पैदा की, अवेयरनेस डाली कि जो लेबर होते हैं उनके लिए भी रूल्स होने चाहिए, उनकी भी लाइफ होती है, और उनका भी जैसे कि उनका समाज के प्रति और देश के प्रति और एक पूरे वर्ल्ड के प्रति एक योगदान होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे उनका शोषण ना हो। ठीक है, तो इसलिए जैसे यूएसए में क्या करते हैं ना, यूएसए में सितंबर मंथ के फर्स्ट मंडे को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक डे फिक्स कर दिया गया, 1 और 1 को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये 1894 से स्टार्ट हो गया है यूएस में, और तब से अब तक कंटिन्यू सब जगह चल रहा है और हमारे देश में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट हॉलीडे भी होता है इस दिन। तो मिस्टर बेगन जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था इसको 19th सेंचुरी में। मेन पार्ट ये है। ठीक है, तो हो सकता है आपके क्लासेस में आपके स्कूल में लेबर डे का सेलिब्रेशन हो, कुछ आपको प्रेजेंट करना हो, देन दिस इज यूजफुल कंटेंट फॉर यू। ओके, गॉट इट? गॉट इट। So keep a note of it, and let's proceed for our next topic. Our next topic is solar family. How many people are here who know about the solar family? सर मी। Tell me. सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। You are telling the name, my dear. I am asking about what is the solar family. Can you tell me? नो सर। So, देखो लाइफ में ओके स्वाति, टेल मी। Solar family is called solar system. You have just given another name. Tell me about solar system. What is solar system? What is solar family? Why we talk about solar family? Okay, leave it. Let me tell you, okay? And whatever questions you have, you must prepare with the questions in next class, or if we have some time in this class also, we can discuss. Okay, solar family.
अच्छा, आपको आप सबको अपने 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 फैमिली के बारे में पता है? यस सर। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में क्यों पता होता है? अपनी फैमिली के बारे में क्यों पता होता है? सर क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उस फैमिली के हम मेंबर हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उस फैमिली से हम जुड़े हुए हैं। लाइक दैट, अगर मैं कोई अंतरिक्ष की बात करूं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, until unless you will not mute yourself, I am not able to tell you the things. Please mute. Please mute. Rudransi, have you mute yourself? No. Okay. Keep mute yourself. Rudransi, you have not muted yourself. Unmuted on myself. Okay. So like our families, अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं, दिस इज प्लेनेट अर्थ, ओके। और प्लेनेट अर्थ जो है वो एक तरह से हमारा घर है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई हम नोएडा में रहते हैं जी, नहीं हम तो आजमगढ़ में रहते हैं, हम तो जो है मुंबई में रहते हैं, हम जो तमिलनाडु में रहते हैं, तो जहाँ भी कहीं रहते हैं, हम पटना में रहते हैं, तो वो क्या एक लोकेशन हो गई। वो एक तरह से आपका समझ लो कि आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो लाइक दैट, जो अर्थ है ना, ये भी एक तरह से हमारा घर है, ये हम सब लोगों का घर है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जितने सारे लोग हैं वो सारे भाई बहन हैं, वो सारे एक फैमिली से रिलेटेड है। तो लाइक दैट वी कैन से दैट अर्थ इज आवर मदर प्लैनेट। अब अगर हम स्पेस की बात करें ना, तो स्पेस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा स्पेस है कि उसमें हमारे जैसे ही करोड़ों पृथ्वी होगी, करोड़ों अर्थ होंगी जिनको हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये सोलर फैमिली है ना, ये सोलर फैमिली भी बहुत सारे से हम, अगर हम सबसे बड़े पिक्चर की बात करें, तो हम जो अंतरिक्ष होता है उसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वो है इनफाइनाइट, ठीक। तो अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है। दूसरी चीज, उसके सेकंड लेवल पर जो चीज आती है, उसको हिंदी में हम आकाश गंगा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वेव, ओके, मिल्की वेव। और एक आकाश गंगा में, एक मिल्की वे में बहुत सारी सोलर फैमिलीज होती हैं। इट मींस बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सन होते हैं और उनका परिवार होता है। जैसे अगर हम इस वर्ल्ड में बात करें या एक छोटी सी जगह की बात करें कि भाई एक्स वाई जी कोई प्लेस है, तो उस प्लेस में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। या फिर वर्ल्ड मैप की बात करें तो वर्ल्ड मैप में बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। उसी तरह से इस यूनिवर्स में बहुत सारे मिल्की वेव्स हैं, मतलब बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और हर आकाश गंगा में बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे सन हैं और उनकी सोलर फैमिली है। उसमें से ही हमारी सोलर फैमिली एक है जिसका हम पार्ट है और जिसका पार्ट अर्थ प्लैनेट है। तो इस सोलर फैमिली में वैसे तो मोटी मोटा देखें ना, तो हमारे पास जो सोलर फैमिली में मेंबर्स है ना, वो है आपके 7, ठीक है। मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो 7 या 8 मान के चलो। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है ना वो छोटे छोटे या बहुत दूर है, ठीक है। और अभी भी हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं और नए नए चीजें निकल के आ रही हैं। तो मेजरली अगर हम देखें तो हमारे सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम में या सोलर फैमिली में जो मेजर मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सन,
Sun is the creator. Sun is the originator. Sun is the source of power. Sun is the source of energy. अगर सन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. अगर सन डिस्ट्रॉय हो गया समथिंग बाय सम वे, तो उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा. कि सारा जो इस सोलर सिस्टम का सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, वो सन की वजह से ही होता है. और सन कहाँ पे होता है? सन होता है सेंटर में. और फिर उसके बाद सीरियल वाइज जो अदर प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी. मरकरी इज द मोस्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. Mercury is And the. hottest also. Can you come again? Swati, can you come again? Sir, Mercury is the hottest planet also. Definitely. अब देखो, अब आप लोग तो पता नहीं नाम सुने होगे नहीं. चूल्हा नाम सुना है? आग का नाम सुना है? अलाव का नाम सुना है? हैं? बाटी चोखा खाते हो ना? स्वाति, आप तो खाते हो बाटी चोखा, बनाते हैं ना आग जला के. तो उस आग के सबसे करीब जो रहेगा, बाटी जो सबसे करीब रहती है, वो सबसे गर्म रहती है कि नहीं रहती है? रहती है ना सबसे गर्म. तो इट मीन्स द प्लैनेट विच इज द मोस्ट नियरेस्ट टू द सन, मतलब जो सन के सबसे करीब में प्लैनेट होगा वो तो सबसे गर्म होगा, हॉटेस्ट होगा. इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न. नाउ the second planet after the Mercury is Venus, and the color of Venus is white, creamy white. Okay, and after that the most precious planet is there named as Earth, और जहाँ पे हम सारे लोग रहते हैं. And only one planet in this solar family where it's confirmed that life is here, because all of us are here. हम सारे के सारे यहाँ पे हैं अर्थ पे, तो हमें पता सारे के सारे, तो हम सारे के सारे इस अर्थ पर रहते हैं, तो हमें पता है कि एक ही जीवंत प्लेनेट है, 100% श्योर. और सबके बारे में अभी हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ के बारे में कंफर्म्ड है कि यहाँ पे लाइफ है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स, और हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि शायद मार्स में भी लाइफ हो, बट अभी हमें पता नहीं है उसके बारे में. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. एंड मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट. क्यों? क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो रेड कलर की है. ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने मंगलयान भी भेजा था हमारी कंट्री से, और सबसे सस्ते में पहुंचे थे. कैसे सस्ते में पहुंचे थे? जितने में हम टैक्सी का भाड़ा देके 10 किलोमीटर जाएंगे ना, उस भाड़े के रेट से ही हम पहुंच गए थे. कहाँ पे? मंगल प्लैनेट पे, मार्स प्लैनेट पे. So it was very cost effective. और उसके बाद आता है अपना जुपिटर. जुपिटर है सबसे भारी, सबसे बड़ा. अपनी सोलर फैमिली का सबसे बड़ा और सबसे भारी प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. और अगर हम जुपिटर पर चले जाएं तो हमारा जो वेट है ना, इस वेट का लगभग 6 गुना वेट हो जाएगा हमारा. मतलब अगर हम यहाँ पे 10 kg के हैं तो वहां जाके 60 kg के हो जाएंगे. पैर कैसे उठाएंगे भाई? गॉट इट? मजेदार है ना? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? यस सर, आ रहे हैं. यस सर. अच्छा, अब इसके बाद जो प्लेनेट आता है वो होता है सैटर्न. सैटर्न क्या होता है? सैटर्न भी काफी बड़ा प्लेनेट होता है, और सैटर्न की बड़ी खास निशानी होती है कि इसके चारों तरफ ना छल्ले होते हैं व्हाइट कलर के गैसों के. और जो व्हाइट कलर की गैसों के छल्ले होते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं ना, ये गजब लगते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
अच्छा, सैटर्न को पता है लोग डराते भी है, ज्योतिषी लोग भी बहुत डराते हैं, अरे शनि 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 की 7.5 आ गई। मतलब ये समझो कि जो ये सारी प्लेनेट की नॉलेज है ना, वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले ही खोज लिया था। इसके बारे में और अच्छी अच्छी डिटेल्स में बताऊंगा आपको। आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द कंप्लीट क्लास टुडे, बट मैं थोड़ी थोड़ी झलकियां और दे देता हूं आपको। ये स्लाइड्स मैं अगली बार फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि अब हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम और बचा है। ठीक है, तो आप मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे सीजन चेंज होते हैं ना, कि गर्मी आ गई जी, गर्मी के बाद फिर बरसात आ गई, ठंड आ गई, ये भी इसी वजह से क्योंकि हमारी सोलर प्लेनेट में मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की। ठीक, हमारे यहाँ डे एंड नाइट होता है कि दिन में आपकी रोशनी आ गई सूर्य की, और फिर रात में चंद्रमा आ गया। ये क्यों होता है? ये भी इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्लैनेट्स में मूवमेंट होती है। ठीक, गॉट इट? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इक्लिप्सिस के बारे में पता है? किसके बारे में? इक्लिप्स, इक्लिप्स, एनीवन? सोलर एक्लिप्स। यस, लूनर इक्लिप्स। कौन कौन जानता है? सर सर मैंने पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। ओहो, इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ा था ना, जिससे नहीं याद आ रहा। अब मैं बताऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। और आप अपने साथ के बच्चों को भी ले आओ ना, अपने दोस्तों को भी ले आओ, उनको भी नॉलेज मिले ना थोड़ी। आप सारे लोग, ठीक है? ओके इट सर। इट्स ओपन फॉर ऑल। तो आप सारे लोग जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेके आओगे, वो भी सीखेंगे ना अच्छी अच्छी बातें। ठीक है? यस सर। हाँ, तो बाय द नेक्स्ट टाइम ऑल ऑफ यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स, and also I am uploading one by one the old lectures on YouTube, so you can also get the link from me and you can explore over there. तो अभी मैंने केवल एक क्लास वहां पे अपडेट अपलोड करी है, द फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर आगे की सारी क्लासेस भी धीरे धीरे करके मैं वहां पे अपलोड करूंगा। अच्छा चलो, अब एक स्टोरी की बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास बहुत और नॉलेज है इसमें, नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी बताया, मैं नेक्स्ट क्लास में आप सबसे पूछूंगा जरूर। गॉट इट? गॉट इट सर। Everyone will come with the preparation, and also मैंने जो सबसे पहले बात की थी कि आप अपना गोल सेट करोगे, और गोल सेट करने के बाद उस गोल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके आओगे और बताओगे मुझे क्यों बनना चाहते हो। ठीक है? और मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा बुढ़े होते होते कि आप लोग वो बन पाए या नहीं बन पाए। और बनोगे, 100% बनोगे, लेकिन मेरे साथ साथ चलोगे तो। ओके, सो ऑल ऑफ यू मी से यस, कम ऑन, यस से यस। यस और यस अपने अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओगे अब। ओके? यस सर। और जो बेचारे बच्चे वो ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज कहीं से नहीं मिलती, उनको तो जरूर जोड़ना है हमें। ये हमारा मोटिव यही है कि हम उन बच्चों को जोड़ पाए, उनको भी जोड़ पाए जो कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती उनको पढ़ने में, कहीं से कोई नॉलेज नहीं मिलता पढ़ने में, उनको भी जोड़ना है। ठीक, चलो अब एक स्टोरी पे बात करते हैं। हम एक स्टोरी सुनेंगे, बहुत छोटी सी स्टोरी है क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है। एक बार की बात है, एक राजा था, और उस राजा के पास ना कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। और राजा काफी ओल्ड हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। अब उसने सोचा कि भैया क्या किया जाए, किसको हम अपना ये राजपाट दे के जाएंगे, क्योंकि अब वो धीरे धीरे उनकी एज हो रही थी, अब वो राजपाट चला नहीं पा रहे थे। और बिना राजा के राज्य तो कोई भी हड़प लेगा। उनके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी, सब बहुत अच्छा था, कुशल मंगल था। तो अब उन्होंने बहुत सलाह मशविरा किया, बहुत सोचा, तो फिर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी अपने यहाँ। और उस प्रतियोगिता में उन्होंने कहा कि भैया हमारे राज्य के जितने भी छोटे बच्चे हैं, यंग एज के बच्चे हैं, जो कि विद इन 10 ईयर्स के हैं, वो सारे के सारे हमारी राज्यसभा में आए, और हम एक कंपटीशन करेंगे, और जो जीतेगा उसी को हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। ठीक है भैया। अब सारे लोग आ गए सुबह सुबह। अब राजा ने सबको बुला के बिठाया, और सबको उनके हाथ पे एक एक बीज दिया। बीज, सीड्स, प्लांट के सीड्स। सबके हाथ में एक एक सीड दिया, और सबको कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जाइए और 3 मंथ्स तक इनकी केयर करिए, और अपने प्लांट्स लेके आना, जिसके प्लांट सबसे अच्छे रहेंगे हम उसी को अपना उत्तराधिकारी
घोषित करेंगे। तो भैया सब लोग गए, अपने अपने प्लांट्स की खूब केयर कर रहे हैं, खूब बढ़िया से रोज उसमें पानी डाल रहे हैं, उनकी छटाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे से उसमें खाद डाल रहे हैं, जो भी कर सकते हैं प्लांटिंग प्लांटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए अपने पापा मम्मी दादा दादी सबकी हेल्प लेकर कर रहे थे। एक बच्चा था, उसका नाम था चिन्मयी। अब चिन्मयी जो है वो भी लेके गया अपनी मम्मी पापा के साथ। अब उस बीज को उसने रोप दिया, उसकी उसने भी अपनी भरसक गरीब परिवार का था, बट वो जो भी कर सकता था उसने करा। लेकिन एक दिन बीता, उसमें कोई प्लांट नहीं निकला, 2 दिन 3 दिन, एक मंथ निकल गया, फिर भी उसमें प्लांट नहीं निकला। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने पानी देता रहा, उसकी खूब सेवा करता रहा, लेकिन उसमें प्लांट नहीं निकला। अब भैया टाइम पूरा हो गया 3 मंथ का, सब लोग अपने अपने प्लांट लेके आए। किसी का बढ़िया अच्छा अच्छा ब्लू कलर का फ्लावर लेके आया, कोई उसमें छोटी सी मौसमी लगी हुई है, किसी में ऑरेंज लगा हुआ, किसी में यू नो अमरूद लगा हुआ, गुआवा। ऐसे करके कुछ लोग और रंग बिरंगे फूल, किसी में नारंगी रंग का फूल, किसी में ब्लू कलर का, किसी में रेड कलर का, किसी में व्हाइट कलर का, सब लेके पहुंच गए। और राजा के सामने रखा गया भाई कि भाई देखिए हमने बहुत मेहनत की। अब राजा साहब ने घूम घूम के एक एक करके सबको देखा, और देखते देखते फाइनली जब उस बच्चे के पास पहुंचे, उसका नाम क्या था? नाम क्या था भाई? अरे नाम बताओ ना। जानवी। देखो, देखो, इस मैंने क्यों पूछा मैंने नाम? क्यों पूछा ना? मैंने नाम मैंने इसलिए नाम पूछा इसलिए कि आप पूछा कि कितने आप ध्यान से ध्यान सुन से रहे हो। सुन रहे हो। ऐसे थोड़े ना ऐसे होता है, थोड़े मैं सुनाते जाऊं आप लोग सुनो ही ना। ओके, सब लोग ध्यान से सुनोगे, नाम याद करोगे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। ओके, अब क्या हुआ भैया? अब चिन्मयी के पास पहुंचे और राजा ने कहा भाई चिन्मयी जो है यही हमारा उत्तराधिकारी है। अब ऐसा क्यों हुआ, आप सारे लोग बताओ, गेस करो। क्योंकि सर उसका पौधा बहुत अच्छा उगा होगा। अरे भैया अरे मैंने भैया बता मैंने दिया, बता उसमें दिया, उसमें पौधा उगा पौधा ही उगा ही नहीं। नहीं। वो तो वो सर, वैसे तो वैसे खाली गमला खाली लेके गमला आया लेके था। आया था। क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। अरे अरे मेहनत की चलो अच्छी बात है, लेकिन मेहनत वो तो कोई की, रीजन नहीं चलो हुआ। अच्छी मेहनत बात तो है, बाकियों ने भी की, बाकियों के पास तो अच्छे अच्छे प्लांट वो आए, तो कोई रीजन फ्लावर नहीं वाले हुआ। मेहनत प्लांट तो आए। बाकियों ने भी की, उसके बाकियों के पास तो पास तो फ्लावर अच्छे भी अच्छे नहीं आया, प्लांट आए, प्लांट उगा तक नहीं। उसके पास तो फ्लावर भी, प्लांट तो उगा तक नहीं। सर, इसलिए क्लियर